all on the alumni webinar series. The day 2 webinar is scheduled today, and our Pride alumni Abhishek Vakodkar is delivering today's webinar. Let me give the introduction about the Abhishek Vakodkar. He completed his BE from our college, our department in 2017-18 batch. He's our Pride alumni, and he is right now pursuing post-graduation in political science and international relation from the MIT College, Kothurud. And he has works in so many sectors, Greenpeace India NGO, then UNICEF India, then GFI strategies, and so many things he does during these 3 years, and having 3 years vast experience in the different fields, and he is a motivator speakers for all colleges, and right now he is working with the soft skill and over to Abhishek. We'll not waste the time, we will start it. Yeah, so like I would really like to thanks upon the founder president KJ sir. Apart from this, like I would like to thanks principal Suhas coach sir, then like Deepak Maitre sir, the head of the department computer, and all the teaching and non-teaching staff who had given me this opportunity to talk in front of you. So like today's topic, what we are going to cover is like what will be the current situation, what will be the latest situations after COVID-19. Apart from this, like what will be the hiring processes, iske alawa, what will be the impact on different sectors. And the last topic which we are going to talk about is like what are the different career opportunities after engineering. Fine. Yeah. So initially what we'll start, we'll see the different sectors, right? And iske pehle, like I would like to explain like what are the sectors, matlab sectors ye hota kya hai. Fine. Say, theek hai. So like if you talk about Indian economy, there are 3 sectors in which like pura GDP uske upar calculate kiya jata hai. Apart from this, there is one more sector, that is fourth, that is quaternary sector. First is primary sector. Basics se hum start karenge. Like I will explain for all the students, those who are unaware of this. Okay? Like fine. So first sector, that is primary, in which kya aata hai? So like agriculture sector ho, poultry ho, या फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर जैसे जो भी नेचुरल से रिलेटेड है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो. सो ऑल दिस सेक्टर्स व्हिच कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर. फाइन. सेकंड थिंग, दैट इज सेकेंडरी. इसमें क्या आता है? तो लाइक कंस्ट्रक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, all this comes in secondary sectors. What about tertiary sector? So that I can mute all. मुझे आवाज आ रही है थोड़ी सी. हेलो. अच्छा, प्लीज म्यूट कर दो सर, मुझे थोड़े से आवाज आ रहे हैं. फाइन. So like third sector, like which we are going to see, that is tertiary, जिसमें शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ tertiary sector होता क्या है. So tertiary जिसमें like सर्विस सेक्टर हम जिसको हम बोलते हैं, इसमें लाइक बैंकिंग, फाइनेंस, अपार्ट फ्रॉम दिस आईटी सेक्टर, या फिर कोई भी ऐसी सेक्टर जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, दैट इज सर्विस सेक्टर. एंड लास्टली दैट इज क्वाटरनरी, जिसमें क्या आता है? तो रिसर्च, एजुकेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ऑल दिस कम्स अंडर क्वाटरनरी सेक्टर. फाइन. सो दीज आर द डिफरेंट सेक्टर्स व्हिच वी हैड सीन. एक शॉर्ट में मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया, क्योंकि on that basis, like we are going to look what are the sectors that will bounce back after COVID-19, what will be the sectors that will take time, what will be the sectors that is already in boom in COVID-19 situations, and what will be the next situation like after we वो boom में रहेंगे. इसके अलावा which are the sectors which will see the uptick or which will see the growth after COVID-19 situations. And very important for the engineering students कि सर्विस सेक्टर में हमारा जनरली आता है कि लाइक कंप्यूटर, आईटी, ई कॉमर्स, या फिर जहाँ पे भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, एकेडमीज एंड ऑल दिस थिंग्स, दिस कम्स अंडर सर्विस सेक्टर. फाइन. सो हमने सेक्टर्स हमने देखे.
now we'll see कि like which will be the sectors that will bounce back, which will be the sectors that will bounce back after COVID-19. ऐसे कौन से sectors हो गए कि जो bounce back हो गए, because now you can see like there are several sectors कि जो down में चल रहे हैं, बहुत सारे loss में चल रहे हैं, even ITs, computer ITs companies, fine, yeah. So ऐसे sectors कि जो bounce back हो गए, which will recover immediately after COVID-19, fine. So इसके जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स है ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर स्टोरेज सेक्टर हो या फिर वेयर हाउसिंग हो. So these are the sectors which will bounce back immediately after COVID-19, fine. Now इसके अलावा और एक there is one more dimension, the sectors curbed by the Indian government. Curbed यानी like जिसके ऊपर कंट्रोल है गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल जैसे पब्लिक प्लेसेस हो, मॉल्स हो या फिर रेलवे हो, all those sectors which are curbed by Indian government. So this will also be the sectors which will bounce back immediately after COVID-19. Fine. Now next parameter in कि जिसमें sectors bounce back होगी तो वो है demand for essentials. So what is demand for essentials? Like जीवनावश्यक, मतलब जो हमारे daily needs, that will also bounce back immediately. ठीक है. अभी these are the sectors which we had seen which will bounce back. जैसे पहले हमने देखा like transportation, storage and warehousing. इसके अलावा sectors which are curbed by Indian government, जैसे for example theaters हो, malls हो, public places हो, airports हो या फिर railways and all those things. So these are the sectors which are curbed by Indian government. So जैसे ही government इनको थोड़ा सा release कर देंगे, so that sectors will see like थोड़े से bounce back हो गए. But government will also take such a decision कि जिसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे हो, इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे एंड स्लोली दैट सेक्टर्स विल बी रिलीज्ड. ठीक है. सो डिमांड फॉर एसेंशियल्स वी हैड सीन, सेक्टर्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग वी हैड सीन, एंड सेक्टर्स कर्ब्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट. सो दीज आर द सेक्टर्स व्हिच विल बाउंस बैक आफ्टर कोविड-19. ठीक है. अभी सेकंड पॉइंट, दैट इज सेक्टर्स व्हिच विल सी द अपटिक, मतलब आफ्टर कोविड-19 ग्रोथ दिखेगी या फिर जिसमें ग्रोथ लाइक हमें पता चलेगी कि लाइक व्हाट अपटिक. इन शॉर्ट ऐसे सेक्टर्स कौन से होंगे? दैट विल बी ई कॉमर्स और होम डिलीवरी. सो these are the sectors which will see like there will be a lot of growth. For example, क्यों ऐसा क्यों होगा? तो the thing is like people will not take risk. अभी now also like you can see like घर पे बुलाते हैं लोग, like people avoid to go outside, fine. So e-commerce हो, home delivery हो, these will be the sectors like which will see the uptick or growth after COVID-19. ठीक है. अभी इसके अलावा जैसे for example we'll see which are the sectors which are in boom in COVID-19 situation and after COVID-19 situations as well. ठीक है. अभी फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सेक्टर्स है कि जिसमें जनरली विल सी कि लाइक ज्यादा बाउंस बैक नहीं होगी. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि गवर्नमेंट सेक्टर्स विच आर कर्ब्ड बाय गवर्नमेंट, इसमें क्या आता है, पब्लिक प्लेसेस भी आते, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलीज नहीं करेंगे. सो दैट्स व्हाई ऐसे कुछ सेक्टर्स है कि जो कर्ब्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट में भी आते हैं और सेक्टर्स विच विल नॉट रिकवर, बाउंस जल्दी से जल्दी रिकवर नहीं होगी, इसमें भी आते हैं. तो उसमें कौन से सेक्टर्स आते हैं? जैसे फ्लाइंग हो, मॉल्स, थिएटर्स. अभी ये हमने देखा विच आर कर्ब्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, बट दिस सेक्टर्स जनरली और ओवरऑल अगर देखते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होगा. लाइक पीपल विल नॉट टेक रिस्क टू रिकवर. सो ये जो सेक्टर्स है इट विल टेक टाइम टू रिकवर. कौन से सेक्टर्स? अभी जैसे मैंने ये पॉइंट पहले मैंने बोला था, सेक्टर्स कर्ब्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट. सो ये कर्ब्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे आते हैं कि जो पब्लिक प्लेसेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे ट्रैवल, मॉल्स, थिएटर्स, होटल, फ्लाइंग ओवरसीज, एंटरटेनमेंट, सिनेमाज, टूरिज्म, ऑल दिस सेक्टर्स दीज आर कर्ब्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट. सो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि इट विल रिकवर, बट इन फैक्ट अगर गवर्नमेंट इसको ये भी करता है, लाइक रिलीज भी करता है, डेफिनेटली गवर्नमेंट विल टेक स्टेप कि जिसमें ज्यादा से बहुत एकदम पूरा फ्री उसको नहीं करेंगे. बट दीज आर द सेक्टर्स, जैसे मैंने बोला पब्लिक प्लेसेस विच डिपेंड्स ऑन
people's behavior. These are the sectors which will take time, which will take a lot of time to recover back. Fine. So ऐसे sectors. Apart from this, like ऐसे कौन से sectors है कि that will be in boom after COVID-19 and which are in boom now as well. So sectors such as pharma, medical, health. Apart from this, like vegetables, primary sectors, telecommunication, classes, online classes. So I say these are the sectors which will be in boom after COVID-19 and which are in boom now as well. जैसे आप देख सकते हो फार्मा है, मेडिकल है, या फिर एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, ऑनलाइन तो चल रहा है. There are a lot of online classes going on, but ऐसा नहीं कि ये सेक्टर रुक गया. So what I want to tell in this, कि like pharma sector हो, medical हो, health हो, digital companies. अभी इसमें और एक point I want to tell. See, COVID-19 is not a situation which is specific to any state or any city or any country. It's not like that. It's a global challenge which is arised. Fine. So in that case, क्या होगा? तो companies will look for alternatives. That is technology. ठीक है? So in that case, ऐसे sectors, for example, कौन से हैं? कि जैसे telecommunication हो या फिर digital companies हो, which are providing digital services and technology based, ऐसे sectors जो रहेंगे, that will be in boom. इसके अलावा these sectors, companies will look as an alternative, that is technology के लिए एक alternative देखेंगे. Fine? Yeah. So हम एक short में हम देखेंगे, like initially I had told you that sectors which will bounce back, जिसमें transportation we had seen, storage, warehousing. Apart from these sectors curbed by Indian government, इसमें भी रिकवर होंगे जैसे जैसे गवर्नमेंट उसको रिलीज करेंगी. इसके अलावा डिमांड फॉर इसेंशियल्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी सेक्टर्स बहुत ज्यादा रिकवर हो गए आफ्टर कोविड-19. इसके अलावा what are the sectors that will see uptick or growth after COVID-19? So sectors like e-commerce या फिर digital services हो, technology related services हो, या फिर home delivery हो. So these are the sectors which will see the uptick or growth after COVID-19 situations. Fine. इसके अलावा what are the sectors which will not bounce back? So ऐसे sectors में हमने कौन सा देखा तो public places, people behavior, जहाँ पे people's behavior दिखेगा, that sectors will not bounce back immediately. जैसे travel, hotel sectors, malls, theaters, flying overseas, cinema, entertainment. क्योंकि people will not take risk. Why should go out? Even like अगर for example if you get the solution, if you get the vaccine in December, उसके बाद after 3 months as well, like people will not take risk to go outside. So these will be the sectors which will be in boom. Apart from this, we had seen like ये जो situation अभी चल रही है, इसमें ऐसे कौन से sectors है कि जो सच में like which are playing major role, like अच्छी तरह से काम कर रहे हैं. तो हमने देखा कि फार्मा हो, मेडिकल हो, हेल्थ हो, डिजिटल कंपनीज हो, राइट. सो दीज आर द सेक्टर्स व्हिच विल बी इन बूम एंड आफ्टर बूम आफ्टर कोविड-19 सिचुएशंस. सो लाइक ये जो डेटा मैंने लिया है, लाइक आई वुड लाइक टू एडवाइस ऑल द स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आप कमेंट करते हो या फिर एनी लाइक ओपिनियन आपको बनाना है, सो डोंट रेफर दोज हु आर पॉपुलर ऑन यूट्यूब. Don't make opinion on those things which on those persons की जो YouTube पे पॉपुलर है या फिर TikTok पे पॉपुलर है. No. अगर आपको इकोनॉमी के बारे में ओपिनियन बनाना है, so there are desired sources, जैसे रघुराम राजन हो, इलेक्शन कमीशन का हेड हो, या फिर द हिंदू, इफ यू टॉक अबाउट न्यूज़पेपर्स, द हिंदू है, इकोनॉमिक टाइम्स है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस है. ठीक है. सो यू शुड रेफर दीज सोर्सेस फॉर द इकोनॉमी before making your own opinion. So ये जो भी data मैंने लिया है, it is taken from the economic times. So anytime you can Google and you can research on that as well. Fine. Yeah. So what are the lessons that we should learn from this? Like ऐसे कौन सी lessons है कि like all over it is challenge for the entire India, कि like पूरे इंडिया ने इसके ऊपर देखना चाहिए. Like what we should learn from this situation. So अगर हम देखते हैं कि सिंस लास्ट हमारी जो भी हमारे जो भी बजट्स आए हैं, सो इन दैट केसेस like hardly 2 to 3% we are investing in health sector,
या फिर एजुकेशन सेक्टर. And like if you take example of Japan, like this is the country who had investment in human capital, जैसे human education में हो, health में हो, इसमें invest करने के बाद it is one of the super powers. So it is the lesson we should or entire India should take, like we should invest more on education, awareness programs, infrastructure, medical, health sector. ठीक है. Apart from this, इसके लिए important क्या है? तो it is like government should massively ramped up upon these sectors and should focus especially on these sectors. ज़्यादा focus इस पे होना चाहिए and इसके लिए larger commitment चाहिए, especially from people as well as from government as well as resources. Fine. Second thing what we should learn from this is like जैसे for example हमारे कुछ products है, जैसे for example pharmaceuticals company है या फिर इंडियन मसालेज वगैरह होते हैं, इसमें वर्ल्ड वाइड में डिमांड है. सो इन दैट केस लाइक दे शुड सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी दैट दे शुड बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट. मतलब फॉर एग्जांपल का क्या, तो फार्मास्यूटिकल जो भी हमारे टैबलेट्स लाइक इंडियन कंपनी जैसे सीरम कंपनी है, इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड है. तो इन दैट केस लाइक दीज कंपनीज व्हिच हैव डिमांड फॉर वर्ल्ड वाइड, सो उन कंपनी में should see it as an opportunity to become a self-sufficient. Fine. So these are the two things like which we should learn from this. Fine. Now, what next we will see is like what will be the hiring process in different sectors. सबसे पहले हमने देखा what are the sectors, 3 sectors. इसके बाद fourth sector. इसके अलावा we had seen what will be the sectors that will be in boom, which are the sectors that will take time, which are the sectors which will see uptick or growth, और which are the sectors which will impact a lot. ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी. Apart from this, like if you talk about expertise, like expertise का industry expertise का ऐसा मानना है कि पूरे इंडिया में near about 60 to 65% we had seen the drop rates, delays, cancellation of interviews. ठीक है, it is overall sectors में. I am not talking about only computer or IT या फिर engineering students. Overall, all इसमें near about 60 to 65% hiring process, drop rates and delay या फिर cancellation ये हमने देखा है. Now, if you talk about अभी ये process ये जो webinar चल रहा है, it is for the engineering students. Fine. So, what about service sector? क्या होता है service sector में क्या होता है? So, it is been observed that near about 10 to 15% सर्विस सेक्टर में डिले या फिर ड्रॉप रेट या फिर स्लो डाउन या फिर जो भी लोगों की प्लेसमेंट हुए तो या फिर इंटरव्यू कैंसलेशन हुआ है. सो दिस हैड बीन सीन नियर अबाउट 10 to 15%. एंड ओवरऑल सेक्टर्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो वी हैड सीन नियर अबाउट 60 to 65% ड्रॉप रेट्स या फिर कैंसलेशन ऑफ इंटरव्यूज या फिर डिले होना. ऑल दिस थिंग्स वी हैड सीन. ठीक है, सो दिस इज द करंट सिचुएशन in overall sector 60 to 65%. Fine. जिसमें लॉकडाउन की वजह से like we had seen. ठीक है, अभी बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि हायरिंग डेट्स का क्या होगा. So if this situation continues, तो definitely there will be delay in the joining process, the joining dates as well. या फिर हायरिंग प्रोसेस भी होगी. तो इसमें अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू होती है ज्यादा देर तक तो हायरिंग में डिले दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा. नाउ लाइक ऑफ कोर्स हमारे कॉलेजेस में लाइक देयर आर डिफरेंट कंपनीज व्हिच कम्स एंड जिसके डोमेन्स होते हैं BFSI जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस एंड इंश्योरेंस. इसके अलावा रिटेल डोमेन, एविएशन डोमेन, लॉजिस्टिक्स डोमेन. ठीक है, नाउ ये जो डोमेन है जनरली व्हाट क्या दिखता है तो लाइक फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज में लाइक झेंसर हमारे टाइप है व्हिच वर्क्स ऑन BFSI डोमेन. सो जो भी एप्लीकेशंस वो बनाता है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस एंड इंश्योरेंस. सो अकॉर्डिंग टू लास्ट एक्सपीरियंस हमने देखा है कि देयर इज लॉट ऑफ हायरिंग प्रोसेस, बहुत सारे ज्यादा हायरिंग होती है इन सब सेक्टर्स में. BFSI डोमेन स्पेशली BFSI, रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स में हायरिंग प्रोसेस ज्यादा होती है. बट ड्यू टू दिस लाइक इसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है एंड डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट. फाइन. अभी जैसे मैंने लास्ट में भी
मैंने बोला लाइक कि लाइक कंपनीज विल सी टेक्नोलॉजी एज एन अल्टरनेटिव, ठीक है. सो अगर हम ये 2-3 महीने का स्पैन देखते हैं, सो देयर इज लॉट ऑफ लॉस या फिर प्रोडक्टिविटी डाउन चल रही है. बहुत सारी कंपनीज ऐसी है कि जहाँ पे they had there is no hiring process, there are several problems. तो कंपनी इसमें क्या करेगी? तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी. तो इसमें मैं व्हाट आई विल सजेस्ट इन दैट, सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर इन इंजीनियरिंग और who are looking for the job after COVID-19, so ये जो situation अभी चल रही है, I will suggest you should focus on latest emerging technologies. latest emerging technologies में कौन सा आता है? तो जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, या फिर मशीन लर्निंग हो, या फिर हडूप हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो. फाइन. सो दीज आर द सेक्टर्स व्हाट आई थिंक यू शुड फोकस ऑन. इट मींस यू शुड बी एक्सपर्ट ऑन, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू वन रियल टाइम एग्जांपल. अभी रियल टाइम एग्जांपल कौन सा? फॉर एग्जांपल एक मार्केट में टूल आया है सेलेनियम करके. फाइन. इट्स अ टेस्टिंग टूल, and before that like you have to complete manual testing, ठीक है. अभी ये सेलेनियम जब आप सीखते हो, so basic what you need is a Java. In short, like company is nothing but a combination of two things, that is development team as well as testing team. So development team में क्या? तो like all Java, .NET, C++, ये सब languages development team में आती है. And like if you talk about testing team, like we are talking about Selenium, right? So Selenium के लिए basic लगता है Java. Fine. So for example, if there are two persons who knows only Java and another person who knows Selenium, जिसमें basic Java भी आता है and उसको Selenium का भी knowledge. So company will definitely look for this person who knows Java, that is basics, as well as he knows testing. So इसमें मैंने why I had given you this example, because like अभी जो आगे सिचुएशन आएगी, तो यू शुड गो फॉर एक्सपर्टीज लाइक सर्टिफिकेशन जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, बिकॉज कंपनी विल लुक टेक्नोलॉजी एज एन अल्टरनेटिव. जैसे मैंने बोला कि डिजिटल सर्विसेज में ज्यादा स्कोप रहेगा, सो यू शुड गो फॉर दिस टेक्नोलॉजीज. फाइन. सो जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको बोला, इट इज not my opinion, it is opinion which I had taken from industry experts from Economic Times. Right? Yeah. So next thing, और एक बात मुझे इसमें बोलनी है. अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला, it's a global challenge. It is not specific for any city, any state or any country. It has been observed throughout the world. It's a global challenge, right? So there will be a lot of impact on the projects which are going on since last 15 years. Apart from this, like there will be impact on critical projects, there will be slow track, revenues हो, productivity हो, profitability हो, companies के इसके ऊपर impact होगा. ठीक है. इसके अलावा what is next point? So जैसे like मैंने last time बोला था, like there will be uptick in health sector, pharma sector, e-commerce. अभी इसमें क्यों ग्रोथ दिखेगी? पीपल, लोग घर पे बैठे हैं, इसकी वजह से हेल्थ सेक्टर, फार्मा, ई कॉमर्स, इसमें ज्यादा होम डिलीवरी हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा अपटिक हमें दिखेगी. फाइन. नाउ लाइक देयर आर टू सेक्टर्स, जैसे एविएशन हो. एविएशन मतलब इन शॉर्ट जो सेक्टर की जो एरोप्लेन के पार्ट्स वगैरह बनाते हो, या फिर विच वर्क्स ऑन एविएशन डोमेन. या फिर सेकंड सेक्टर दैट इज टूरिज्म. अभी पास्ट एक्सपीरियंस से हमने देखा है कि जैसे मैंने बोला कि टूरिज्म में थोड़ा सा डिले होगा, लाइक देयर विल नॉट बी लाइक इमीडिएट रिकवर नहीं होगा. बट फ्रॉम लास्ट एक्सपीरियंस, फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, इफ यू ऑब्जर्व, लाइक टूरिज्म एंड एविएशन एक ऐसे सेक्टर्स है कि जिसमें लाइक भले कि वो इम्पैक्ट दिखा हो, बट इट हैज बीन रिकवर्ड इमीडिएटली फ्रॉम द लास्ट फ्यू एक्सपीरियंसेस. फाइन. या अभी लास्ट पॉइंट इसमें क्या मुझे बोलना है, तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स एंड डिजिटल कंपनीज या फिर सर्विस सेक्टर, इसमें हमने ज्यादा लाइक वी शुड फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट दे शुड फोकस ऑन दिस थिंग्स. आणि इफ यू टॉक अबाउट हायरिंग प्रोसेस, सो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स, हेल्थ सेक्टर्स, ई कॉमर्स, एक्सपर्टीज या फिर सर्टिफिकेशन इन पर्टिकुलर थिंग,
सर्टिफिकेशन इन शॉर्ट मतलब क्या, तो जब आप सर्टिफिकेशन करते हो तो इफ आई विल गिव यू एन एग्जांपल व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये जो सेक्टर्स है देयर विल बी अ हायरिंग प्रोसेस आफ्टर कोविड-19, देयर आर स्टिल हायरिंग प्रोसेस गोइंग ऑन दिस सिचुएशन एज वेल, कि जैसे मैंने बोला ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस सेक्टर, डिजिटल कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज, ई कॉमर्स, सो ये जो सेक्टर है ये सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा हायरिंग प्रोसेस दिखेगी, अभी भी हो रहा है एंड कोविड-19 सिचुएशन के बाद भी होगा, ठीक है। एंड लाइक इफ यू टॉक अबाउट कैंपस रिक्रूटमेंट, जो ऐसे स्टूडेंट्स की जिनकी प्लेसमेंट कैंपस से हुए हैं, तो इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डेट्स में या फिर ज्वाइनिंग डेट्स में थोड़ा सा डिले होगा, फाइन, या so this we had seen initially, we had talked about sectors primary, secondary, tertiary. Primary sectors में जैसे agriculture हो या फिर dairy products या फिर vegetables, poultry, animal husbandry, fishing, all these sectors comes under primary. Secondary we had seen constructions as well as manufacturing sector, इसमें secondary में आता है. Tertiary sector में banking, finance, service, insurance, service sectors या फिर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो दैट कम्स अंडर सर्विस सेक्टर. एंड क्वार्टरनरी सेक्टर दैट इज हमने देखा कि जिसमें एजुकेशन, रिसर्च या फिर जो भी लेटेस्ट कुछ ऐसा नया आता है स्पेस में हो, तो ऑल दिस कम्स अंडर क्वार्टरनरी सेक्टर. इसके बाद वी हैड सीन कि सेक्टर्स दैट विल बाउंस बैक, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग. इसके अलावा सेक्टर्स कर्व्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस थर्ड पैरामीटर दैट इज डिमांड फॉर एसेंशियल्स, जिसमें हमें देखा we will see the like these are the sectors which will bounce back quickly. Second thing, like sectors which will not bounce back quickly, ऐसे sectors कौन से, तो on people's behavior, sectors which depends on people's behavior, जैसे travel, malls, hotels, flying overseas, tourism, theater, malls, these are the sectors which will take time to recover back. Fine, ये हमने देखा. Third sector, like तीसरा point हमने कौन सा देखा, like what are the sectors which are in boom right now and which will be in boom after COVID-19 situation such. So that are the sectors जैसे pharma, medical, health, digital companies, technologies driven based, ठीक है, telecommunication. So ऐसे सेक्टर जो अभी भी बूम में है और बाद में भी बूम में रहेगा. फाइन. इसके बाद what lessons we had seen, what lesson we should learn from this is like हमारी जो गवर्नमेंट है फ्रॉम लास्ट के कोई भी बजट आप उठा लो, हार्डली वी आर इन्वेस्टिंग 2 to 3% इन आवर हेल्थ, एजुकेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल. ये जो सेक्टर्स में गवर्नमेंट हार्डली 2 से 3% इन्वेस्ट करता है. सो वी शुड टेक इट एज अ लेसन दैट वी शुड इन्वेस्ट मोर ऑन दिस सेक्टर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरा लेसन हमने क्या देखा था, व्हाट वी हैड लर्न, लाइक फार्मास्यूटिकल्स, हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स जैसे मसाले हो. So these are some of the products which has demand through worldwide. So ऐसे sector में they should think for self sufficiency, जिसमें उन्होंने देखना चाहिए. उसके बाद what we had seen कि like market scenarios and hiring process पे कैसे impact होगा. So current situation जैसे मैंने बोला, overall impact अगर हम देखते हैं तो near about 60 to 65% there is overall impact on all the sectors. Fine. Now if you talk about just our second point which I had told you that like अगर ये situation continue रहती है तो definitely hiring process, delay rates, cancellation of interviews पे भी impact होगा. Now if you talk about computers, IT, service sectors, इसमें near about 10 to 15% impact इसमें भी दिखेगा. Right? Second point was what we had seen that like technology, all the companies will look for a technology as an alternative. For what? For example, see, I will tell you, any company or any business, it is run for profit. ठीक है. So company always runs for, मतलब कोई भी company हो, कोई भी business हो, business always runs on profit. So इसके लिए वो क्या देखेंगे, technology, automation, latest emerging technologies. अभी फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम लेटेस्ट एग्जांपल या फिर एक रियल टाइम एग्जांपल हम लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज. फॉर एग्जांपल अगर हमने इंडिया में लॉन्च कर दिया, तो इन दैट केस लाइक एक 2-3 एग्जांपल्स हमारे यहाँ पे आए भी है, केरला में हो या फिर आंध्रा वगैरह, उस साइड एक पुलिस स्टेशन में एक ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट कर दिया है. या फिर यूएस का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे
a vehicle without driver. अगर इंडिया में ये आ जाता है तो there will be lots of losing of jobs. So it's an alternative for US के लिए देखेगी, बट बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी देखेगी कि कंपनी में आईटी में ये इसका यूज कैसा होगा. तो डेफिनेटली ऐसे मैंने बोला टेक्नोलॉजी एक उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका प्रॉफिट, उनका रेवेन्यू ये बढ़ाने के लिए डेफिनेटली टेक्नोलॉजी एक अल्टरनेटिव देखेंगे. इसके अलावा व्हाट वी हैड सीन कि जैसे देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स, टूरिज्म, एविएशन, जिसमें पास्ट एक्सपीरियंस से अगर हम देखते हैं तो इसमें इम्पैक्ट होता भी है, तो दिस सेक्टर्स विल जल्दी बाउंस बैक हो जाते हैं. एंड लास्ट थिंग व्हाट वी हैड सीन जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट, तो इसमें भी ज्वाइनिंग डेट्स में थोड़ा सा डिले हो सकता है. फाइन. So this is the end of market scenarios, hiring process and impact on different sectors. So next what we are going to start is like इसके अलावा इसके पहले next point हमारा जो हम cover करने वाले हैं तो that is career opportunities after engineering. Fine. Like इसके ऊपर जो भी questions होंगे we'll take at the end. Now we'll start with career opportunities after engineering. ठीक है. So there are different situations. A lot of students must be facing. There must be confusion in their mind. They must be wondering. There must be a lot of challenges. कौन सा what I should choose as a career? like क्या करना चाहिए? What are the different options after career? या फिर कुछ family pressures होता है. इसके अलावा भी like students go for IT. So but there are I had sorted out near about 10 to 15 pointers कि जिसमें आप अपना करियर कर सकते हो आफ्टर इंजीनियरिंग. ठीक है. फाइन. सो सबसे पहले सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट्स, राइट. सो जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कैंपस प्लेसमेंट. तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? योर CGPA स्कोर, योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, योर अप टू डेट कैलकुलेशन. Apart from this, like second parameter which is important for campus placements is your aptitude as well as soft skills. It is very important. It's like it acts as an entry criteria for any company. Fine. So important पहला point क्या है? Your CGPA score, overall performance as well as up to date calculation. ठीक है. Second thing what is important, your aptitude, soft skills and extracurricular activities. Now why these extracurricular activities are important? So जैसे लीडरशिप क्वालिटी हो, कम्युनिकेशन हो, क्रिएटिविटी हो, टीम मैनेजमेंट हो, या फिर ऐसे all these things which you learn from extracurricular activities. So पहला पैरामीटर हमने देखा कि like campus placements जिसमें what is important, your CGPA score, overall performance, and second thing that is soft skills as well as aptitude as well as extracurricular activities. Fine. So ये पहला हुआ. Second thing which we are going to see that is higher studies. ठीक है. Higher studies में क्या है? तो for example GATE. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन में इंटरेस्टेड है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गेट. अभी गेट थ्रू लाइक यू कैन गो इन IITs as well as NITs. अभी इन ओवरऑल इंडिया लाइक there are 21 IIT colleges and there are 31 NIT colleges. ठीक है. अभी इसमें डिफरेंस क्या है? तो both the colleges have national importance, no doubt. ठीक है. But it's like it is Indian Institute of Technology and that is National Institute of Technology, NIT as well as IIT. अभी इसमें डिफरेंस क्या है? तो I will tell you. ऑलमोस्ट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, नेशनल इंपॉर्टेंस दोनों कॉलेज में है, बट थोड़ा सा डिफर होता है. तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, production of young leaders, that apart from this reputation of the college, placements, package. ठीक है. So these are the things which differ in both the colleges. ये थोड़े से चीजें होती है जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रोडक्शन ऑफ यंग लीडर्स, इसके अलावा रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज, प्लेसमेंट्स, पैकेज, ऑल दिस थिंग्स. ये थोड़े से छोटे से डिफरेंस है. बाकी दोनों कॉलेजेस को एक नेशनल इंपॉर्टेंस है. ठीक है. सो यू कैन गो इन IITs as well as NITs थ्रू गेट, जिसमें योर गेट स्कोर विल डिसाइड योर विच कॉलेज लाइक यू आर गोइंग टू गेट. फाइन. सो ये इसमें एक क्लासिफिकेशन है. इसके अलावा MS अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों में क्रेज होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में देयर आर लाइक लॉट ऑफ क्रेज कि लाइक
I want to complete my masters from US, UK, New Zealand, right? So इसके लिए जो है, इसके लिए there are options, that is TOEFL, that is test of engineering, test of English language. इसके अलावा IELTS, जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, इन लोगों के लिए IELTS इज द बेस्ट ऑप्शन, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। अभी इसके अलावा और एक ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल GRE, TOEFL. These are the exams which is specifically for US, UK, Canada, ठीक है। अभी ये क्या होता है, तो दे जस्ट वांट योर वर्नाकुलर लैंग्वेज, या फिर उनकी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज जैसे इंग्लिश और एप्टीट्यूड यहाँ पे भी बहुत मैटर करता है। लाइक आउट ऑफ 340 यू शुड गेट एटलीस्ट 320 मार्क्स, जिसमें आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, ठीक है। अभी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बोल दिया कि एप्टीट्यूड एज वेल एज इंग्लिश, एंड MS के लिए ऑप्शंस कौन से, TOEFL, IELTS, GRE, ठीक है। GRE इट्स लाइक ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। US, कनाडा, अलग अलग देशों में लाइक यू कैन गो, ठीक है। नाउ ये एक पैरामीटर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको खुद के सेक्टर में, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग है, मुझे मेरे सेक्टर में रिसर्च करना है, मुझे मेरे सेक्टर में एकेडमिक्स या फिर रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट है। सो देयर इज वन एग्जाम दैट इज JAM, जॉइंट एडमिशन टेस्ट, JAM, ठीक है, जिसमें आप खुद के फील्ड में, एकेडमिक्स में, रिसर्च में लाइक यू कैन जा सकते हो। लाइक देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, लैब्स, गवर्नमेंट लैब्स, ठीक है। ऐसे सेक्टर में अगर आपको जाना है, खुद के सेक्टर में आपको स्पेशलाइजेशन करना है, सो देयर इज एग्जाम दैट इज JAM, ठीक है। सो यू कैन नोट दैट, जॉइंट एडमिशन टेस्ट, ठीक है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ग्रेजुएशन चाहिए एंड यू शुड हैव मिनिमम 55% एग्रीगेट, ठीक है, इन ग्रेजुएशन, ठीक है, फाइन। सो दिस वाज द सेक्टर। इसके अलावा जैसे हम देख रहे हैं कि हायर स्टडीज में हम क्या कर सकते हैं, सो हायर स्टडीज में और एक बात है, PhD, जैसे फॉर एग्जांपल नेट एग्जाम हो, JRF हो, CSIR हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे आप मेरा ले सकते हो, सो आई एम कंप्लीटिंग मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम IGNOU। इसके बाद मैं नेट एग्जाम दे सकता हूँ, या फिर JRF, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अभी गवर्नमेंट ने खुद एक स्टार्ट किया है, अगर आपको PhD के लिए एडमिशन मिलता है आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम कंप्लीटिंग मास्टर्स इन दिस पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन आई कैन गिव द JRF। इसकी वजह से अगर मुझे विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट मुझे अगर PhD के लिए एडमिशन मिलता है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू स्टाइपेंड एज वेल, नियर अबाउट 32 to 34 42 तक आपको स्टाइपेंड मिलता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट हैड एडेड वन मोर पॉइंट, दैट इज ये 2 साल में आपको टीचिंग का भी एक्सपीरियंस इसमें मिलता है, फाइन। सो फॉर दैट द एग्जाम इज JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। सेकंड वन दैट इज नेट, और इसको कंडक्ट कौन करता है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक जो बोर्ड है, या फिर CSIR बोर्ड, ये इसको कंडक्ट करता है, फाइन। सो PhD के लिए या फिर मास्टर्स के लिए ये हमने देखा। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक कुछ लोग, कुछ जिनको VIT, SRM, BITS, ऐसे कुछ कॉलेज इसमें ज्यादा क्रेज होता है कि नहीं मुझे करना है मास्टर्स, तो आई विल कंप्लीट इट फ्रॉम VIT ओनली, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। सो इसके लिए हर कॉलेजेस के, हर ऑटोनॉमस कॉलेजेस की कुछ ओन एंट्रेंस टेस्ट होती है, दे हैव देयर ओन एंट्रेंस टेस्ट। सो फॉर दैट लाइक यू हैव टू गो ऑन देयर वेबसाइट, यू हैव टू सी फॉर करियर पेज, एंड उसमें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर व्हिच वी आर गोइंग टू सी, दैट इज टीचिंग प्रोफेशन और ओन कोचिंग क्लासेस, ठीक है। टीचिंग प्रोफेशन में भी आप जा सकते हो आफ्टर ME या फिर MTech या फिर आफ्टर BE एज वेल। BE के बाद भी आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो, या फिर खुद के क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। इफ यू थिंक दैट लाइक यू हैव द गट्स टू प्रूव, टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, यू हैव दैट क्वालिटी, लाइक आप एक प्रॉपर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इन दैट केस यू कैन चूज दिस प्रोफेशन, दैट इज टीचिंग, या फिर ओन खुद के क्लासेस आप स्टार्ट कर सकते हो, फाइन, या। So next what we are going to see, that is public sector undertakings. Public sector undertakings मतलब क्या, तो in short हम ये जो point है ये higher studies में भी आता है, but public sector मतलब क्या, तो like there are two concepts, that is public sector unit as well as public sector enterprises, ठीक है।
अभी ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मतलब या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के एग्जांपल्स कौन थे? तो BHEL, SAIL, ONGC, AAI, OIL, ठीक है. So these are the some sectors or these are some companies which are totally or near about 51%. अभी for example I will explain the public sector units क्या होते हैं. Public sector units are the units जिसमें गवर्नमेंट के 51% या फिर 49 ज्यादा से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के इसमें होते हैं. और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब क्या? तो टोटल 100% शेयर्स आर ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसमें से दो में से कोई भी आप चूज कर सकते हो. ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो गेट का स्कोर विल डिसाइड योर एनी कॉलेज और एनी पब्लिक सेक्टर यूनिट. कोई भी कॉलेज जो आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट में जाता है तो गेट इज द ऑप्शन. अभी इसमें एडवांटेज क्या है? गवर्नमेंट का ज्यादा क्रेज क्यों होता है? तो इसमें बेस्ट होता है, बेस्ट मतलब लाइक सिक्योरिटी का आपको इश्यू नहीं. कोई भी अभी फॉर एग्जांपल अभी ये जो कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, तो इन दैट केस कभी भी आपको कंपनी बोल सकती है, प्राइवेट सेक्टर आपको बोल सकते हैं कि लाइक वी डोंट नीड यू, लाइक या फिर ऐसे ही टेस्ट कंडक्ट करेंगे कि जो जिसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होती है, हार्डली आउट ऑफ 100 नियर अबाउट 5 to 10 स्टूडेंट्स कैन क्रैक दैट एग्जाम. और बाकी के जो 90 स्टूडेंट्स बचेंगे उनको बोलेंगे लाइक यू आर नॉट कैपेबल एंड नाउ वी डोंट नीड यू. So this can be stand which is taken by private government, but if you talk about public sector units, इसमें सिक्योरिटी का आपको बहुत प्रोटेक्शन होता है, सिक्योरिटी मिलती है. इसके अलावा ह्यूज सैलरी, लाइक जैसे आपको चाहिए वैसे सैलरी आपको मिल सकती है इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. So this comes under public sector undertakings. This is the fourth point which we had seen. Now next point which we are going to see, that is experts certification. जैसे मैंने लास्ट में भी बोला कि लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिमांड है इन दिस सिच्युएशन एज वेल आणि कोविड-19च्या नंतर एज वेल. ठीक आहे, याच्यामध्ये खूप हे जसं याचे एक्झाम्पल्स. आता याच्यामध्ये काय तर तुम्हाला एक सर्टिफिकेशन याच्यामध्ये करावं लागेल. यू हॅव टू डू द सर्टिफिकेशन्स इन ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इथिकल हॅकिंग एक एक्झाम्पल आहे, किंवा डिजिटल मार्केटिंग आहे. These are the latest emerging technologies or the technologies which is in boom or which will be in boom after as well. ठीक है, so I will suggest कि जे पण मुलं इंजिनिअरिंग करतायत तो I will tell you, I will guide you or I will suggest you, I will advise you to go for this. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, हडूप हो, या फिर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इथिकल हैकिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग. सो दिस इज अ सर्टिफिकेशन और एक्सपर्ट्स. ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन दिस वी हैड सीन. अभी इसमें और एक प्रॉब्लम है, इसमें एक कंसेप्ट है. नाउ व्हेन यू डू सर्टिफिकेशन देयर इज वन चैलेंज, दैट इज कट थ्रोट कंपटीशन. अभी ये कट थ्रोट कंपटीशन क्या होता है? विच इज मोस्ट प्रोबेबली और जनरली ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपर्ट्स और सर्टिफिकेशन में ये ऑब्जर्व मतलब दिखता है. ठीक है, अभी कट थ्रोट कंपटीशन इज अ कंपटीशन which is a strong competition but in a unfair way. It's a strong competition in an unfair way without considering any harm caused to others. I will not elaborate it, but from definition you can understand. And ही जी गोष्ट है, ही cutthroat competition, it is most probably observed in experts or certification programs. जहाँ पे भी आपको हायरिंग किया जाता है, जहाँ पे भी आप जाते हो on this basis, तो ये दिखता है कट थ्रोट कंपटीशन. दैट इज कंपटीशन इन अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, दैट इज स्ट्रॉन्ग बट इन अ अनफेयर वे. जो भी लोग यहाँ पे आएंगे डेफिनेटली एवरीवन विल हैव अ नॉलेज और 100% नॉलेज रहेगा, बट इसमें क्या होगा? इट विल बी अ अनफेयर वे, कंपटीशन इन अ स्ट्रॉन्ग बट अनफेयर वे विदाउट कंसिडरिंग एनी हार्म कॉज टू दी अदर्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव एक रियल टाइम एग्जांपल. तो कोई कंपनी है, उनका अगर कोई रिलेटिव है तो उनको हायर कर देते हैं. तो इन दैट केस लाइक इन शॉर्ट आप ये ले सकते हो, इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन. ठीक है, फाइन. सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज 6, दैट इज MBA. ठीक है, सो व्हाट आई विल टेल, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन
to choose to reach the highest ladder in the corporate. और बहुत सारे लोग ये करते हैं और इसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कैट एग्जाम, कैट स्कोर डिसाइड्स योर कॉलेज, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला, इट इज द वे टू रीच द हाईएस्ट पोजीशन इन द कॉर्पोरेट, ठीक है। सो कैट आप एमबीए कर सकते हो कि जिसका कैट आपको डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। एंड ऐसा कुछ नहीं, लाइक एमबीए यू कैन कंप्लीट फ्रॉम वेरियस स्ट्रीम्स, जैसे एचआर है, मार्केटिंग है, सेल्स है, फाइनेंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर, इसमें भी आप एमबीए कर सकते हो, ठीक है। अभी इसमें बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो लाइक आईआईएम, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, ठीक है। जैसे आप मतलब फ्रॉम इंजीनियर टू लाइक मैनेजर पोस्ट तक आप विद द हेल्प ऑफ एमबीए आप जा सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, सी लाइक जैसे मैंने बोला, कंपनी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, दैट इज डेवलपमेंट टीम एज वेल एज टेस्टिंग टीम। सो जो भी मोस्ट प्रोबेबली इंजीनियर्स या फिर स्टूडेंट्स चूज डेवलपमेंट, ठीक है। एक 5-6 साल बाद लाइक आप कोडिंग कर करके आप लाइक यू गेट बोर्ड, तो इन दैट केस अगर आपने एमबीए किया हो तो यू कैन गो इन बिजनेस, यू कैन गो इन मैनेजमेंट टीम एज वेल, ठीक है। सो इट इज द हाईएस्ट, in short, like you can reach the topmost position of the corporate. So MBA, इसके अलावा like MBA आप एक फॉरेन से भी कर सकते हो, जिसके लिए there are several exams, जैसे CMAT है, NMAT है, XAT है, SNAP है, TISS है, टाटा इंस्टीट्यूट इसको कंडक्ट करती है। इसके अलावा IRMA करके एक एग्जाम है। So these are the different exams which plays role in प्रॉपर इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। वहाँ पे भी आप कर सकते हो या फिर इंडिया में भी आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 7th पैरामीटर फॉर करियर अपॉर्चुनिटीज व्हिच आई विल टेल यू इज माइका और या फिर अपग्रेड। सो ये दो इंस्टीट्यूशंस है which focuses on digital marketing. Digital marketing is one of the most important as well as plays very important role in the society. जैसे फॉर एग्जाम्पल माइका, इट्स अ मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, अहमदाबाद में सिचुएटेड है, एंड एक लाइक ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेस होते हैं। सो इट्स एन एमबीए ओनली, बट ओनली थिंग इज डिजिटल मार्केटिंग में किया जाता है। अभी ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, लाइक इन शॉर्ट आई विल टेक 1 or 2 एग्जांपल्स। मतलब फॉर एग्जांपल आपका कोई ब्रांड है, आपका कोई बिजनेस है, सो इसको प्रमोट करने के लिए यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, the use of technology to promote your brand or business, that is nothing but digital marketing. अभी ये जो कोर्स आप करते हो तो इसमें आपको एक प्रिंसिपल सिखाते हैं, या फिर जैसे there are 11 gurus of marketing, जैसे सबसे पहले में नेम आता है लाइक फिलिप कोटलर का। तो इनके प्रिंसिपल्स क्या है, लाइक व्हाट आर द थिंग्स यू शुड फॉलो इन मार्केटिंग, या फिर ऑनलाइन जैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके ब्रांड में आपका बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हो। दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच इज टॉट, एक जनरल डेफिनेशन है व्हिच आर टॉट इन डिजिटल मार्केटिंग। सो इन शॉर्ट आप क्या ले सकते हो, इट्स अ टेक्नोलॉजी व्हिच इज यूज्ड टू प्रमोट योर बिजनेस और योर ब्रांड, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है। तो बेस्ट, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो डिजिटल मार्केटिंग में के लिए अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है तो बेस्ट ऑप्शंस कौन से, तो एक इंस्टीट्यूट है माइका अहमदाबाद में। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अपग्रेड करके एक भी इंस्टीट्यूट है, UPGRAD, अपग्रेड और माइका, एनी यू कैन चूज। अभी आई विल टेक 2 एग्जांपल्स जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है। अभी लाइक इफ यू सी 8 March 2018 it is celebrated as a women's day, ठीक है। अभी मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया था, तो ये जो M है, लाइक मैकडॉनल्ड्स का अगर आप सिंबल देखते हो तो इट इज M, ठीक है। बट ऑन 8 March 2018 दे हैड रिवर्स्ड इट, क्या किया, M का W कर दिया। सो इसका मीनिंग क्या है, एंड इसका जो डिस्कशन है, इट हैज बीन स्टार्टेड ऑन यूट्यूब, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, या फिर लोगों में डिस्कस होने लगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी उधर ये वायरल हो गया कि मैकडॉनल्ड ने ये जो लोगो है ये रिवर्स कर दिया ऑन वुमेन्स डे। तो लोगों को लगा यार इट्स अ रियली ग्रेट थिंग।
और ऐसे डिस्कशन ज्यादा बढ़ने लगे, और बढ़ने के बाद इससे क्या हुआ, तो उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो ब्रांड है, उनका जो नेम है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो अगर ये लेवल पे है, तो इट हैज बीन इंक्रीज्ड, इट हैज बीन डबल्ड, और जो मैकडॉनल्ड्स लोग खाने लग गए, इन शॉर्ट इसका ज्यादा सप्लाई बढ़ गया. तो why I had told you this example? So this is the best example of digital marketing, use of technology to promote the brand as well as business. ठीक है, अभी ये हो गया एक एग्जांपल. I will take second example, that is KFC. I don't know like आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं, बट KFC जो है, KFC, इसको चेंज करके उन्होंने FCK किया है, FCK. तो इससे भी क्या हुआ ना, सो जब उन्होंने ये लोगो चेंज किया, तो इन दैट इज न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, सो ये पूरा यहाँ पे डिस्कस होने लगा. अभी इसमें इशू क्या था, लाइक KFC से डिमांड बहुत ज्यादा थी, ठीक है, देयर वाज लॉट ऑफ डिमांड फ्रॉम KFC, बट दे वर नॉट एबल टू रीच टू ऑल दोस पीपल जिनकी डिमांड है, तो उन तक वो पहुंच नहीं पा रहे थे. तो इन दैट केस उन्होंने क्या किया, वो हैड चेंज दैट लोगो एंड दे हैड फाइंड दैट अल्टरनेटिव, दैट इज टेक्नोलॉजी एज एन अल्टरनेटिव. उन्होंने भी किया टू प्रमोट देयर ब्रांड. तो ये न्यूज़पेपर के लाइक टॉप न्यूज आ गई, एंड उसमें भी ऐसा दिखा गया कि लाइक उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी ये सब पैरामीटर्स उनको दिखे उसमें. So digital marketing is also one of the best options after engineering you can choose. ठीक है. So we'll go to the next parameter, that is business. Business भी आप कर सकते हो, but इसमें business में कैसा होता है, you can choose any business, ऐसा कुछ नहीं. Like there are several examples कि जिन्होंने engineering की and they had started hotel business, engineering की and they had started like खुद के प्रोजेक्ट बनाते हैं लोग, खुद का एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया, ऐसे भी हो सकता है. बट व्हाट आई विल सजेस्ट, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, सो इफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग एंड यू आर डूइंग सच अ बिजनेस जो इट इज नॉट रिलेटेड टू योर फील्ड, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस. सो व्हाट आई विल सजेस्ट इन दैट, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो गो फॉर सच अ बिजनेस जिसमें यू कैन अप्लाई योर नॉलेज विच यू हैड लर्न फ्रॉम लास्ट 4 years. समझ रहे हो आप बात को? So business अगर कर रहे हो, तो apply that knowledge in that field. For example, you had completed engineering from computers, electrical. तो ऐसा business choose करो which will be related to your field. ठीक है? Yeah. So business, that is 8th pointer which we had seen. Next 9th pointer what we are going to see is entrepreneurship and startups. ठीक है? अब ये entrepreneurship क्या है और startups क्या है? So what is basic criteria, what is basic thing which is needed for entrepreneurship or startups? So what I will tell, it is the unique idea and problem solving approach. Apart from this, third one which I will add in that is the capital which you want to invest. ठीक है, 3 चीज चाहिए. First thing, the unique idea which you should know, you should have, and you should have the problem solving approach. इसके अलावा you should have, अगर ये दोनों हैं and इसके साथ साथ कैपिटल नहीं है, तो I will suggest you should not go for it. या फिर स्टार्टअप्स में you should not go. But if you have little bit capital, you have unique idea as well as you have a problem solving approach, so definitely you should go for it. And इसका best example, my classmate Subhendu Shah, like he is one of the youngest entrepreneurship. He is one of the youngest entrepreneur in not only in Maharashtra but पूरे इंडिया में, and even like abroad में भी उसके बहुत सारे clients हैं. So you can see on Google as well, Subhendu Shah करके. Like he was my classmate. Like in first year, like we used to sit on, मतलब first year में like उसकी second year में branch change हो गए, but in first year like we used to sit on same bench. ऐसी situation थी. And now like he is one of the youngest entrepreneur and successful entrepreneur. बहुत सारे कॉलेजेस ने उसको इनवाइट भी किया. माहित नाही. हे बघ, हे मैत्रीचं मेसेज आलं, मी कुठं बघितलं तर. अच्छा, सो लाईक मला बाकीच्यांचे आवाज येत आहेत. ते काहीतरी रिपोर्ट दिलाय.
अच्छा हॅलो सर मैत्र सर लाईक बाकीचे अनम्यूट करता येईल का म्यूट या मला आवाज येतोय ऍक्च्युली अच्छा फाईन थँक्यू सो लाईक एंटरप्रेनरचे एक बेस्ट एक्झाम्पल आपण एक दोन याच्यामध्ये घेणार आहे लाईक देर आर 2 रिअल टाइम एक्झाम्पल्स ऑफ एंटरप्रेनरशिप लाईक वाय यू शुड चूज एंटरप्रेनरशिप ॲज अ करियर ठीक आहे सो फर्स्ट एक्झाम्पल विच विल टेक ॲज अ पेटीएम what Paytm had done, Paytm had solved the problem of cash scarcity. Cash scarcity चा पूर्ण प्रॉब्लेम हा पेटीएम ने सॉल्व्ह केला. आपण कधी असा विचार पण नव्हता केला. वी हॅड नेव्हर थॉट की असं पण काहीतरी होऊ शकतं म्हणून. बट इनिशियली कॅशचे जे प्रॉब्लेम्स होतात आणि त्याला सोल्युशन काय आहे, जसं मी इनिशियली हॅड टोल्ड की एंटरप्रेन्योरशिपला काय लागतं, व्हॉट एंटरप्रेन्योरशिप नीडेड, दॅट इज your unique idea as well as problem solving approach. तर त्याचं एक रिलेट याला करा, रिलेट दिस थिंग टू दिस रिअल टाइम एक्झाम्पल दॅट इज पेटीएम. कॅश स्कॅर्सिटी हा एक प्रॉब्लेम आहे आणि याला सॉल्व्ह कोणी केलं तर पेटीएमने सॉल्व्ह केलं. सो पेटीएम हॅज सॉल्व्ड प्रॉब्लेम ऑफ कॅश स्कॅर्सिटी की ज्याचा आपण विचार सुद्धा नव्हता केला. फाईन. सेकंड प्रॉब्लेम, सेकंड रिअल टाइम एक्झाम्पल विच वी आर गोइंग टू सी दॅट इज फ्लिपकार्ट. What Flipkart had done, Flipkart had removed the hassle of shopping offline. पहिले आपण याचा विचार पण नव्हता केला की लाईक आपण ऑफलाईन पण शॉपिंग करू शकतो किंवा घरी बसल्या बसल्या पण आपण शॉपिंग करू शकतो, राईट. बट आज ती सिच्युएशन नाही. सो फ्लिपकार्ट इज द बेस्ट एक्झाम्पल हु हॅड रिमूव्ड द हॅसल ऑफ शॉपिंग ऑफलाईन. ठीक आहे. सो ये एक बेस्ट एक्झाम्पल, दीज वर द 2 एक्झाम्पल्स दॅट इज पेटीएम अँड फ्लिपकार्ट. फाईन. आणि ऑफ एंटरप्रेनरशिप ॲज वेल एज स्टार्टअप्स. ठीक आहे. नाव आता याच्यामध्ये बरेच एक मिथ्स आहे, बऱ्याच स्टुडंट्सच्या माइंडमध्ये देर आर लॉट ऑफ मिथ्स. लाईक वेन यू स्टार्ट विथ एंटरप्रेनरशिप और वेन यू स्टार्ट विथ स्टार्टअप्स, लाईक मुलांच्या डोक्यामध्ये असतं की आपण लवकर अमीर होऊ, वी विल बी रिच इन व्हेरी अर्ली टाइम, या फिर पॉप्युलॅरिटी. ठीक आहे. ह्या गोष्टींसाठी लोक हे करिअर चूज करतात. बट यू शुड हॅव पेशन्स इन दॅट. अपार्ट फ्रॉम दिस लाईक असं काही गरजेचं नाही की तुम्हाला मनी हा लगेच भेटेल म्हणून. ठीक आहे. पॉप्युलॅरिटी अँड मनी या 2 गोष्टीसाठी लोक जनरली हा करिअर ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून चूज करतात, दॅट इज एंटरप्रेनरशिप अँड स्टार्टअप्स. बट आय विल सजेस्ट यू शुड हॅव पेशन्स इन दिस. सेकंड थिंग इज लाईक यू शुड नॉट हॅव मिथ दॅट after choosing this option, that is entrepreneurship or startup, you will become rich person or popular person very early. No, it's a big myth. It may take time or you should have patience. Fine. Now there is a course as well, entrepreneurship certificate programs, बरेच programs available आहे की जे तुम्ही which गुगल वर वगैरे सर्च करून तुम्हाला जो बेस्ट वाटेल तो तुम्ही करू शकता. ठीक आहे. फाईन. सो 10th parameter which now we are going to see is 10th and 11th, that is armed forces as well as merchant navy. ठीक आहे. आता जनरली इंडियन आर्मी रिक्रूट्स इंजिनिअरिंग, इंडियन आर्मी रिक्रूट्स इंजिनियर्स फॉर दिस अँड लाईक या फिर मर्चंट नेव्ही. इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी आर्म्ड फोर्सेस. आता याची जी रिक्रुटमेंट असते, दिस रिक्रुटमेंट इज डन बाय इंडियन आर्मी. And what is advantage in this? Armed forces मध्ये what are the advantages? That is, it is highly paid jobs and it is very respectable. ठीक है. अभी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो आपकी एज लिमिट हो, आपकी ग्रेजुएशन हो या फिर एग्रीगेट, ऑल दिस इज मेंशन्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस या फिर यूपीएससी या फिर आर्म्ड फोर्सेसची जी पण वेबसाईट आहे त्याच्यावर पूर्ण ते अकॉर्डिंग टू the year as well as according to the requirement ते पूर्ण गाइडलाइन्स त्यांच्या वेबसाईटवर तुम्हाला भेटतील. Now next point, 11th point, that is merchant navy. You can choose merchant navy as also you are one of the career opportunities, career point of view ने तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे. आता why merchant navy? So like engineers are the persons who had creativity in them. ठीक है. Like कुछ ना कुछ तो अलग होता है इंजीनियर्स में. That's what I think. And to build the infrastructure development, to deal with infrastructure development, like ह्या गोष्टीसाठी डील करण्यासाठी याची रिक्रुटमेंट केल्या जाते. याच्यामध्ये सुद्धा एक नेव्हिगेशन झालं, नेव्हिगेशन इंजिनिअरिंग, याच्यामध्ये पण सेम
it is highly paid and very respectable jobs, merchant navy. Okay, so these are the two options, 10th and 11th. Apart from this 12th option, which I will suggest is which I had choose, that is share market. आता what is eligibility criteria for share market? तर असं काही eligibility criteria नाही. Even a student who had just passed 10th standard, असे स्टुडंट्स पण बरेच आहे की शेअर मार्केटमध्ये त्यांनी त्यांचं करिअर केलेलं आहे. जसं आपल्याच माझ्या बॅचचा एक मुलगा आहे, मिहीर सारंगे म्हणून, त्यांनी इंजिनिअरिंग सोडून दिलं होतं आणि नाव हा एक म्हणजे जसे दोन मार्केट्स आहेत, मतलब एक डोमेस्टिक मार्केट आणि एक नॅशनल मार्केट. तर तो नॅशनल मार्केटमध्ये आय थिंक बऱ्यापैकी चांगल्या पोस्टवर, डेस्ट बँकमध्ये चांगल्या पोस्टवर तो काम करतो. ठीक आहे, तर यू कॅन चूज दिस ऑप्शन ॲज वेल. आता याच्यामध्ये काही काही असे कोर्सेस आहेत, जसं फॉर एक्झाम्पल CFP एक सर्टिफिकेशन आहे, एक एक्झाम आहे CFP आणि सेकंड एक्झाम आहे CFA. दॅट इज CFP म्हणजे काय, तर सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लॅनर. ठीक आहे, आता हे सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लॅनर म्हणजे काय, तर आता फॉर एक्झाम्पल आता हे म्युच्युअल फंड्स जास्त आहेत, त्याच्यामध्ये बरेच लोक जातात आणि त्यांच्याकडून ऍडवाइस घेतात की आम्ही कोणत्या शेअरमध्ये इन्व्हेस्ट केलं पाहिजे, कोणत्यामध्ये नाही केलं पाहिजे, काय प्लॅनिंग केलं पाहिजे, कोणत्या प्लॅनिंग केवढे तुमचे मागं पडले पाहिजे किंवा कोणत्या गोष्टीमध्ये इन्व्हेस्ट झाली पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टीची जी प्लॅनिंग असते ती तुम्हाला कोण गाईड करतं, तर तुम्हाला सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लॅनर गाईड करतात. अँड फॉर दॅट यू हॅव टू क्रॅक CFP. ठीक आहे, सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लॅनिंगची एक एक्झाम असते, ती एक्झाम तुम्हाला क्रॅक करावं लागते. ठीक आहे, याच्यासाठी तुम्हाला एक ओव्हरऑल नॉलेज पाहिजे मार्केटचं. त्याच्यानंतर यू शुड बी अटॅच्ड विथ फायनान्स, इकॉनॉमिक टाइम्स तुमची एक रीडिंग असली पाहिजे. इसके अलावा सेकंड दॅट इज सर्टिफाईड फायनान्शियल ऍडवायझर्स. ठीक आहे, आता सर्टिफाईड फायनान्शियल ऍडवायझर ही एक अशी पोस्ट आहे, ही एक अशी एक्झाम आहे, जर कधी तुम्ही क्रॅक कराल तर ऑफकोर्स म्हणजे जेवढी तुम्ही सॅलरी डिमांड कराल त्याच्यापेक्षा जास्त सॅलरी तुम्हाला देईल, अशी म्हणजे सर्टिफाईड फायनान्शियल ऍडवायझर्स. पण ह्या ज्या दोन एक्झाम्स आहेत, ह्या एक्झाम्स हार्डली म्हणजे 500 ते 1000 मधून 1 ते 2 जण क्रॅक करतात. CFA स्पेशली सर्टिफाईड फायनान्शियल ऍडवायझर्स. आता यांचे रोल्स काय असतात, व्हॉट आर द रूल्स ऑफ दिस सर्टिफाईड फायनान्शियल ऍडवायझर्स. तर फॉर एक्झाम्पल आपण रिअल टाइम एक्झाम्पल्स घेऊ, तर लाईक विल टेक रिअल टाइम एक्झाम्पल्स. तर जसं आपलं बजेट फॉर्म होतं, तर त्याच्यामध्ये कसं कोटी ज्याचे आपल्याला बरेच मुलं असतात ज्यांचा आपल्याला नंबर वाचता येत नाही, त्या लोकांना तेवढ्या अमाऊंटची ही लोक डील करत असतात आणि डेली सर्टिफाईड फायनान्शियल ऍडवायझर्स. तर हे जे लोक घेतले जातात, ऑल दिस पीपल हु आर हायर्ड, दीज आर हायर्ड थ्रू सर्टिफाईड फायनान्शियल ऍडवायझर्स. जसं HDFC झालं, ICICI झालं, किंवा म्युच्युअल फंड्सचे हेड्स असतात, किंवा बजेटमध्ये जे हायर केलेले लोक असतात, किंवा फॉर एक्झाम्पल आता आपले जे फंड्स आहे, इंडियन गव्हर्नमेंटचे फंड्स जसं म्हणजे पूर्ण जो व्यवहार होतो की एवढ्या स्टेट्सला फॉर दिस स्टेट दिस मच मनी इज अलोकेटेड, फॉर दॅट स्टेट दिस मच मनी इज अलोकेटेड. सो ऑल दिस इज, याची जी अकाउंटेबिलिटी, याचा जो पूर्ण रेकॉर्ड आहे हा कोण ठेवतं, तर हे सर्टिफाईड फायनान्शियल ऍडवायझर्स जनरली असतात. ठीक आहे, सो यू कॅन चूज दिस फील्ड ॲज वेल. ठीक आहे, नेक्स्ट 13th पॅरामीटर दॅट इज NGO. तुम्ही लाईक स्वतःचा NGO सुद्धा लाईक यू कॅन स्टार्ट करू शकता. अपार्ट फ्रॉम दिस आय विल शेअर माय एक्सपिरियन्स. NGO हे एक असे सेक्टर्स आहे, लाईक जर कधी युनेस्कोचा किंवा ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल NGO ॲज वेल एज IGO, युनिसेफ, मी ह्या दोन्ही NGO सोबत काम केलेलं आहे, इंटरनॅशनल गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन. आता NGO आणि IGO हे दोन्ही सेम नसतात ऍक्च्युली. NGO तर काय आहे, तर लाईक दीज आर नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन. ठीक आहे, अँड IGO is intergovernmental organization. For example, I will tell you real-time example. Now, UNICEF is a member of United Nations, and there are several members, even including India, is a member of United Nations. म्हणजे काय, तर इन शॉर्ट मला याच्यामध्ये हे सांगायचं, तर बऱ्याच गोष्टी अशा असतात आपल्या, वी आर अटॅच्ड. म्हणजे आता मी युनिसेफ सोबत काम केलं, आय हॅड वर्क विथ युनिसेफ. So UNICEF is a member of United Nations, and even India is a member of United Nations. So these are not NGO. It's not
but it can be called as IGO, intergovernmental organization. पूर्ण गव्हर्नमेंट पण नसतं आणि they are not totally non-governmental organization सुद्धा नसतं. So you can work, after working with it, like you can start NGO as well. आता याच्यामध्ये माझा फ्युचर प्लॅन आहे की लाईक टू फोकस ऑन स्पेशली ऑन, आता बऱ्याच आपल्या जर कधी इंडियामध्ये आपण बघितलं तर एक लिटरसी रेट आपली खूप कमी आहे. अँड स्टेट्स लाईक MP, UP, झारखंड अशा बऱ्याच स्टेट्स आहे की ज्याच्यामध्ये एज्युकेशन झालं, अवेअरनेस प्रोग्राम्स झाले, बऱ्याच लोकांना या गोष्टी माहिती नसतात. सो माझा एक असा प्लॅन समोर चालू आहे की लाईक आय शुड स्टार्ट अन NGO, बट एक पूर्ण नाही, इट्स लाईक प्लॅनिंग इज गोइंग ऑन. एज्युकेशन सेक्टरवर फोकस जास्तीत जास्त झाला पाहिजे आणि एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लाईक इफ यू टॉक अबाउट 73rd and 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, त्या अमेंडमेंट नुसार एक प्रत्येक गोष्ट ग्रासरूट डेमोक्रेसी पर्यंत गेली पाहिजे. तो कन्सेप्ट एक रिअल टाइम मध्ये आणण्याचा मी एक प्रयत्न करतोय. याच्या व्यतिरिक्त पुढे तो एक फ्युचर प्लॅन आहे, लेट्स सी. तर NGO मध्ये सुद्धा तुम्ही एक सेक्टर तुम्ही करू शकता. जसे बरेच NGO आता चांगल्या याच्यावर काम करतात. बट NGOच्या बाबतीत एक रिपोर्ट आला होता ज्याच्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे, इफ यू टॉक अबाउट 100 NGOs, देर आर हार्डली 10% NGOs विच रिअली वर्क्स. 90% NGOs जस्ट एक पेपर वर्क्स असतात. आता याच्यामधलं एक बेस्ट एक्झाम्पल NGO सांगायचं म्हटलं तर लाईक यू कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ बेअरफूट कॉलेज. यू कॅन गुगल इट. ही वॉज अ पर्सन, he was most influenced person in the entire world who had focused on solar panels as well as पंप, आपले जे पंप्स असतात ना त्याच्यावर त्यांनी फोकस केलं. आणि द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन दिस NGO दॅट इज बेअरफूट कॉलेज, की त्याच्यामध्ये असं इम्पॉर्टंट आहे की एक 60 to 70% वयाची जी लोक आहे ते लोक एक आफ्रिकाच्या लोकांना सोलार पॅनल्स कसे बनवायचे ते त्याच्यामध्ये ते शिकवले जातात. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये अजून एक युनिक गोष्ट काय आहे तर ही जी लोक आहे हल्ले जे 60 ते 70 वर्षाची जी लोक आहे, म्हातारे लोक, त्या लोकांना आफ्रिकन लँग्वेज येत नाही आणि आफ्रिकेच्या लोकांना यांची लँग्वेज समजत, तरी सुद्धा ते लोक सोलार पॅनल्स कसे बनवायचे हे त्यांना शिकवतात. सो लाईक कॅन यू इमॅजिन लाईक काय आयडिया असू शकते ते, लाईक कसं NGO असेल. ठीक आहे. सो अशी काहीतरी एक युनिक आयडिया समजा तुमच्यामध्ये. जसं माझा एक फोकस आहे लाईक एज्युकेशन सेक्टरवर मी जास्तीत जास्त फोकस करण्याचा प्रयत्न करतो. इव्हन माझी जी लाईक अकॅडमी मी स्टार्ट केली, अभिश्री अकॅडमी, लाईक यू कॅन सी द लोगो ॲज वेल, की एज्युकेशन फॉर द वर्ल्ड स्टेज. जे बरेच आपल्या इथं अवेअरनेस कमी आहे, लोकांना छोट्या छोट्या गोष्टी माहिती नाही. फेसबुकवर, व्हॉट्सअपवर काही कमेंट केल्या जातात ज्याच्यामध्ये काही रेफरन्स नसतो, काही नसतं, काही बोलल्या जातं. ठीक आहे. सो you can choose NGO as well. एक ऑप्शन तुम्ही चूज करू शकता. ठीक आहे. Now next pointer which we are going to cover, that is civil services, UPSC. आता बरेच लोक असतात. आता मला ऍक्च्युली मित्र सर बोलले पण होते, मला दुसरा एक अजून एक टॉपिक दिला होता सरांनी, दीपक सरांनी, टू टॉक ऑन द कंपनी स्पेसिफिक ऍप्टिट्यूड as well as soft skills and preparation for competitive exams. असा टॉपिक दिला होता, बट डेफिनेटली हा तो पोस्टपोन केला सरांनी. सो लेट्स सी, त्याच्यावर पण असलं तर मी डिटेलमध्ये बोलेल. नाउ सिव्हिल सर्व्हिसेस, इथं मी एक शॉर्ट मध्ये सांगतो. आता सिव्हिल सर्व्हिसेस म्हणजे काय तर लाईक इन शॉर्ट गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस. मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स हैव द क्रेज लाइक मैं बनूंगा तो मुझे गवर्नमेंट सर्विस में ही जॉब करना. and I will make one statement which will be in Marathi. तर MPSC मधून सगळ्यात खालची, सगळ्यात वरची जी पोस्ट आहे, MPSC मधून सगळ्यात वरची जी पोस्ट आहे ती उपजिल्हाधिकारी आहे. आणि UPSC मध्ये सगळ्यात खालची जी पोस्ट आहे ती जिल्हाधिकारी आहे, मीन्स IS. So in short, what I want to tell is, if you choose UPSC as your career, so from IS to the post of president, to the post of CM, गव्हर्नर ऑफ इंडिया, अशा या फिर UPSC हेड या फिर चेअरमन, ह्या पोस्ट पर्यंत तुम्ही जाऊ शकता. यू कॅन रीच अप टू दॅट लेवल. याचे एक्झाम्पल समजा घ्यायचे म्हटलं तर लाईक यू कॅन सी अरविंद केजरीवाल. ही वॉज इन Indian Revenue Services, Revenue Department. He used to work in Revenue Department and now he is a CM. Apart from this, Kiran Bedi, he was in Indian Police Services. Now she's working in Jharkhand, I think.
आणि पॉंडिचेरीमध्ये पण त्यांना एक बऱ्यापैकी पोस्ट दिलेला आहे. सो आय एम सॉरी, लाईक आय एम नॉट अवेअर ऑफ दॅट पोस्ट, बट यू कॅन रीच अप टू दॅट लेवल. अपार्ट फ्रॉम दिस, लाईक यू कॅन बी अ मेंबर ऑफ UPSC, इलेक्शन कमिशनचे तुम्ही मेंबर होऊ शकता विथ द हेल्प ऑफ UPSC अँड MPSC. ठीक आहे. And the last parameter that is which I'm going to cover is law. आणि अच्छा फाईन, ज्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स आहे याच्या बेसिक जे क्रायटेरिया तुम्हाला हवा आहे, बेसिक तुम्हाला याच्यामध्ये कोणत्या गोष्टी रिक्वायर्ड आहे, तर त्या म्हणजे लाईक तुमचं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट पाहिजे. नॉट नेसेसरी दॅट यू शुड कम्प्लीट युअर ग्रॅज्युएशन फ्रॉम इंजिनिअरिंग, मेडिकल. नो, यू कॅन कम्प्लीट एनी ग्रॅज्युएशन अँड लाईक यू कॅन go for UPSC as well as MPSC, any. ठीक है. So apart from this, like last option which we are going to see, that is law. So law is also one of the best example to after engineering. And if you talk about law, there is nothing limitation. अगर आपका एज 32 है, 42 है, 52 है, इवन आप लाइक बूढ़े होने के बाद भी आप लॉ कर सकते हो. And most of the politicians had completed their law. And law एक ऐसी चीज है जिसमें आपको सिस्टम के फुटफॉल्स समझ में आते हैं. आप you understand what is system actually, वो आपको डिटेल में समझ में आता है. सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको करियर अभी लॉ में क्या कर सकते हो, यू कैन डू इट एज अ करियर एज वेल एज यू कैन गो फॉर कॉर्पोरेट लॉ एज वेल. ठीक है. इसके अलावा व्हाट आई विल सजेस्ट फॉर द अवेयरनेस प्रोग्राम्स एनी हाउ फॉर ऑल फैकल्टीज, ऑल सीनियर सिटीजन्स या फिर कोई भी हो, आई विल सजेस्ट कि आपने लॉ करना ही चाहिए. कोई भी टीचर हो, इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड, वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल, बट यू शुड कंप्लीट योर लॉ. ताकि आपको पता चलता है कि लाइक व्हाट इज हाउ सिस्टम वर्क्स, व्हाट आर द फुटफॉल्स ऑफ सिस्टम, लाइक हाउ इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है. यू अंडरस्टैंड दीज बेसिक थिंग्स. ठीक है. फाइन. सो दैट वाज द लास्ट ऑप्शन. एंड लॉ करने के लिए अगर कोई स्टूडेंट है कि हु इज एज अ करियर, तो GLC बॉम्बे करके एक बेस्ट कॉलेज है. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली में भी एक बेस्ट कॉलेजेस है. ठीक है. इसमें आप करियर या फिर कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हो. सो दीज आर द 15 पैरामीटर्स व्हिच वी हैड सीन. सो आई विल रिवाइज शॉर्टली. फाइन. एक सबसे पहले हमने देखा कि लाइक कैंपस प्लेसमेंट्स, फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैड सीन, जिसमें हमने देखा लाइक वी नीड CGPA स्कोर या फिर एप्टीट्यूड, सॉफ्ट स्किल्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. ठीक है. सेकंड थिंग व्हाट वी हैड सीन, दैट इज हायर स्टडीज, गेट, जिसका लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. ठीक है. जिसमें IITs, NITs. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैड सीन MS, दैट इज GRE, TOEFL, IELTS. These are the exams which you can if you want to go abroad and you have to complete your masters from abroad, then you can choose these exams as well. ठीक है. लास्ट लाइक और एक एग्जाम पैरामीटर विच वी हैड सीन, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसमें एकेडमिक्स, रिसर्च, खुद के इसमें आपको रिसर्च करना है, तो इन दैट केस JAM करके एक एग्जाम है, जॉइंट एडमिशन टेस्ट. ठीक है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट लैब्स, टीचिंग, ऑल दिस सेक्टर्स. ठीक है. इसमें आप जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ JAM, दैट इज जॉइंट एडमिशन टेस्ट. बाद में हमने देखा PhD या फिर नेट आप दे सकते हो, JRF आप दे सकते हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नेट. ठीक है. इसका CSIR या फिर नेट कंडक्ट करते हैं. ठीक है. या फिर स्पेसिफिक मुझे यही कॉलेज चाहिए, VIT, SRM, BITS. ठीक है. उनकी ओन एंट्रेंस टेस्ट होती है. ठीक है. तो इन दैट केस लाइक स्टूडेंट्स शुड लुक ऑन टू देयर नोटिफिकेशंस या फिर करियर पेज पे उसमें क्या रहेगा, ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैड सीन, लाइक टीचिंग या फिर ओन कोचिंग क्लासेस, उसमें भी आप कर सकते हो. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी हैड सीन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एज वेल एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, दैट वी हैड सीन. अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसके लिए गेट एक एग्जाम है, BHEL, SAIL, ONGC, ऐसे एग्जाम, ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आप जा सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट व्हिच वी हैड सीन, लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. इसमें यू कैन सी इट एज अ करियर अपॉर्चुनिटी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस हो, इथिकल हैकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑल दिस थिंग्स. फाइन. इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, कट थ्रोट कंपटीशन क्या है, दैट
you आपको डिटेल में चाहिए, you can search on Google as well. Apart from this, next sixth option, that is MBA. इसमें CAT एक basic criteria है. CAT score will decide your college, and I had told you this is the best option to reach the highest position in the corporate. ठीक है, IIM एक बेस्ट कॉलेजेस है, डिफरेंट सेक्टर्स में आप MBA कर सकते हो. अगर आपको अब्रॉड करना है तो CMAT, NMAT, XAT, SNAP. अपार्ट फ्रॉम दिस EISS करके एक एग्जाम है, IRMA करके एक एग्जाम है, वो उसके लिए आप जा सकते हो. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक माइका, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको कुछ करियर बनाना है तो माइका, अपग्रेड करके, these are the online courses, online MBA प्रोग्राम कोर्सेस, 6 months 12 months के कोर्सेस होते हैं. 8th ऑप्शन बिजनेस के बारे में मैंने बात की, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स. ठीक है, these are also one of the best options. उसके बाद I had told you about armed forces, merchant navy. Later I had talked about share market as well, CFP as well as CFA courses, NGOs, civil services, and lastly that is LAW, that is law. ठीक है. इसके अलावा I will request all the students कि same जो वीडियो है I'm going to share on my YouTube channel as well, कि जिसमें अभिश्री एकेडमी करके मेरा एक चैनल है, YouTube चैनल, जिसमें लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए I had started the channel. ऐसा नेसेसरी नहीं है कि लाइक सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो लोग से उन्होंने वही वीडियोस देखने चाहिए. नो, Indian polity, it's necessary for all the students, teachers. एक अवेयरनेस के लिए रिजर्वेशन क्या है, हमारा एक हॉट टॉपिक, बट हर आदमी को पता होना चाहिए कि why it is given, कौन से रैंडम कमेंट्स आती है. तो फॉर दैट पर्पस, फॉर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, for education sector, I had started that channel, and definitely I will request all of you to subscribe for that channel. Even I will request Deepak sir to share the link as well. इसके अलावा अगर वो जो लिंक है ये वीडियो की, I will share it on my YouTube channel as well. And of course, at last, I would really like to thanks upon all the teaching, non-teaching staff, and especially Deepak Maitre sir, who had given me this opportunity to talk in front of all the students. And it was really nice. And I think this is one of my greatest achievement. My own college, I'm talking in my own college, and I had got this opportunity to talk in front of you guys. And really, really thanks for this, especially Deepak Maitre sir. Thanks for that. Yes, so like I hand over this to Abhishek. Yes, nice you discussed about all your all criteria that we discussed. You discussed 15 different topics. What are the pros and cons? There are few questions asked by the participants. Let me go through one by one. First question is asked sir, that the sir is about the GATE examination and the strategies. So let me what answer about yours, Abhishek. GATE examination, every year the GATE examination will be there. October, in the month of October, we're supposed to fill the form, and in the month of February, second week on Sunday, there is an exam. There is 11. If you are talking about the computer engineering, there are core 11 subjects are there from the second year to final year. So you need to prepare this all and prepare well. It will be national level test. You will get major opportunities after clearing or having a valid GATE score with a percentage. You can go for the MTech, you can go for different aptitude exams, or even different what we call jobs offers are also there based upon the GATE exam. So hopefully the answer will be given to your participant. The next question towards Abhishek. Yes, sir. There is a common question, it arises here. Let me in post-COVID-19 era, what will be the good sector to go in, especially in service sector or product sector? अच्छा,
सो लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज सर्विस सेक्टर, राइट? सो ऑल दोज थिंग्स व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज, दैट इज नथिंग बट सर्विस सेक्टर, फाइन। अभी मैंने बोला कि ऑफ कोर्स देयर विल बी सम सेक्टर्स दैट विल बी इन बूम और दैट विल बी रिकवर बैक इमीडिएटली, फाइन। अभी कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे कि जिसके ऊपर इम्पैक्ट होगा, वो भी हमने देखा। बट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सर्विस सेक्टर में, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल हो या फिर सर्टिफिकेशंस, कोई भी आप सर्टिफिकेशन अगर आप करते हो रिसर्च में आप या फिर डिजिटल सर्विसेज हो, तो ऐसे सेक्टर्स या फिर हेल्थ सेक्टर हो, ई कॉमर्स हो, ठीक है, तो ऑल दिस सेक्टर्स विल बी इन बूम। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस सेक्टर्स कि जो अभी भी बूम में है एंड उसके बाद भी वो बूम में रहेगी। They are asking about not for job, they are asking about the entrepreneurship, the अच्छा, service so like, sector and product sector in internship, entrepreneurship. अच्छा सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन? They want to start their startup. Either they start in service sector or either they start in product sector. Sorry sir, sorry Mala, I didn't get the question again, please. Yeah. Question is that in post-COVID-19 era, what will be the good sector to go in service sector or product sector in terms of internship? In terms of internship? Yeah. Entrepreneurship. Acha, entrepreneurship you are talking about. Acha. Yeah. If anybody want to start their startup, no, either it should entrepreneurship go like sector or product sector. That way. अच्छा, so see entrepreneurship के बारे में मैंने जो बात की, so what you need is your unique idea and you should have problem solving approach, ठीक है, ये बात मैंने आपको बोली। and I had given you two real time examples, ठीक है, वो Paytm and Flipkart का example I had given, right? तो see unique idea it means like अगर आपके पास कुछ unique idea है and if you have that confidence कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तो doesn't matter कि वो situation कैसी हो after COVID-19 या फिर before COVID-19, but ऐसी idea which will be related to keeping in mind all those sectors कि जो हम use कर सकते हैं in entrepreneurship as well. तो in that case, like you should work on it. Are you satisfied or not yet? Yeah. There is another question that MPSC better or the UPSC better? अच्छा, so like if you talk about competitive exams, MPSC and UPSC, जैसे मैंने एक statement किया था, so ऐसा better and ऐसा कुछ नहीं है. All those students like सबको पता होता है कि like can I crack it or not. तो मैंने जैसे बोला कि like MPSC की सबसे जो highest post है, it is deputy CM, deputy collector, deputy IAS, ठीक है, not CM, deputy IAS और DM, district magistrate, and UPSC की सबसे जो lowest post है, that is district magistrate, IAS, Indian Administrative System, collector is the basic post. मतलब क्या, तो UPSC through you can reach to the highest position in the government and MPSC में ऐसा better वगैरह कुछ नहीं होता है. It's like depends on your अगर आपको if you are confident कि यार नहीं मैं कर सकता हूँ, I can do it anyhow, तो definitely I will suggest you should go for UPSC. अगर करना ही है तो फिर कुछ बड़ा ही करते हैं ना, छोड़ा क्यों करना. So that I will suggest you should go for UPSC. ऐसा होता नहीं है, but if you think that like I can crack UPSC, so you can go for UPSC as well. And UPSC is one of the toughest exam in the entire world, कि जिसमें top 10 toughest exams में आती है UPSC, जिसका अगर आप स्कोर देखते हो तो 2000 out of 2200 something, 2400 something, उसमें से like hardly जो फर्स्ट रैंकर होता है उसका स्कोर होता है 1100, 1200. इट मींस 50%. सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम. समझ रहे हो? सो व्हाट आई विल सजेस्ट, लाइक अगर इफ यू थिंक कि लाइक मैं कर सकता हूँ, तो आई विल सजेस्ट यू शुड गो फॉर यूपीएससी.
Yes. Next question, please. Yeah, there is another questions from the chat box, but it is very crucial how you answer. I don't know. The government jobs are not preferred by the people. Why? Acha, government jobs are not preferred. Yeah, government jobs are not preferred by the people. Why? अच्छा, okay. ऐसा मुझे personally नहीं लगता है. Now, if you, I will suggest the student that like just go and visit Sadashivpet, go and visit Delhi or any location in Delhi, and you will understand. Like अगर government jobs अगर हम देखते हैं, now UPSC is also one of the government jobs, या public sector units, या फिर इंजीनियरिंग के बारे में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है. अगर इंजीनियरिंग के बाद आपको कुछ पोस्ट चाहिए अच्छी, तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में लोग जाते हैं. बट यूपीएससी के लिए फॉर एग्जांपल कुछ नोटिफिकेशन आता है, तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स अगर 800 होती है, तो नियर अबाउट 10 to 12 lakhs फॉर्म्स आते हैं. सो इट्स लाइक 0.1% उसका सक्सेस रेट है. तो आई डोंट थिंक लाइक इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि देयर इज people don't choose government jobs. Yeah, very true, very true. There is one more question. After COVID-19, which sector suits for mechanical engineering students? Acha. Which sectors will be? Which sector suits for mechanical engineering students? अच्छा, मतलब कौन से बूम में रहेंगे? After COVID-19, which, let me repeat. After COVID-19, which sector suits for mechanical engineering students? अच्छा, तो जैसे मैंने बोला कि ओवरऑल इम्पैक्ट हर सेक्टर में ज्यादा रहेगा. नियर अबाउट ऑल ओवर इंडिया में वी हैड सीन 60 to 65% इन एंटायर सेक्टर. पूरे जितने भी सेक्टर, मैकेनिकल हो, इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, MBA, BBA, BCA, ऑल सेक्टर्स. हर स्टूडेंट्स को दे मस्ट सी कि लाइक मैकेनिकल डिपार्टमेंट में व्हाट इज स्पेशलाइजेशन, व्हाट इज योर यूनिक आइडेंटिटी, और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज है कि जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बूम में है. दैट यू शुड रिसर्च एंड देन ऑन दैट बेसिस यू शुड गो फॉर दैट ऑप्शन. दैट आई विल सजेस्ट. क्योंकि क्या होगा, no, they are talking about the after COVID-19. अच्छा, after COVID-19. Yeah. And like what is specific they had asked? What is specific thing they are asking? After COVID-19, which sector suits for mechanical engineering student? No sir, like I'm confused. Questions मुझे समझ में नहीं आ रहा है. After COVID-19 wars, no, what sector suits for mechanical engineering students? Means design ho, structure ho, and this kind of manufacture ho, automobile ho. In which sector in the mechanical there will be booms back? Acha, fine. Acha. So like I'm little bit less aware of this design and all these things. So what I will suggest is, जिसमें भी जैसे मैंने बोला कि I had told you कि like जिसमें specialization होगा वो आपने करना चाहिए. I'm really sorry for that कि I'm little bit less aware of design and all those things. Okay, there is one more question. What to do for MS abroad? अच्छा, what? अच्छा, MS fine. अच्छा, तो जैसे मैंने बोला कि like and like for a minute sir, इसके पहले जो मैकेनिकल का स्टूडेंट्स जिसने वो क्वेश्चन आस्क किया था, तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू like just search on Google कि what are the and refer Economic Times, fine, and in which mechanical sector में which will be the emerging technologies or which will be the emerging tools that will be used in the market, and on that basis I will suggest you to focus on that. ठीक है, fine. Now next question, what will be the MS के लिए different exams, right? Abroad. Sir, please repeat the question again. What to do for MS abroad? What to do after MS? What to do for MS abroad?
ज्याला अच्छा, अच्छा. MS करायचंय अब्रॉड मध्ये त्यासाठी काय करायला पाहिजे? Acha. So I had told you about 3 exams, right? That is GRE, IELTS, and TOEFL. Fine. So GRE and IELTS हो या फिर TOEFL हो, these are exams. अगर इसका आप syllabus देखते हो, तो इसका syllabus है maths, that is aptitude, या फिर English. That's the only eligibility criteria. So इसके लिए जो भी sources, for example, कोई classes वगैरह हो, या फिर इंग्लिश आपकी एक बेस्ट चाहिए, सेकंड फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग इज आपका एप्टीट्यूड जो है इस पे आपको कमांड चाहिए आपका. एंड टोफेल, IELTS, दैट इज इंटरनेशनल. सी IELTS का फुल फॉर्म में क्या है? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. ठीक है. टोफेल का क्या है? टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. एंड GRE का क्या है? ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है. तो बेसिक आपको तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए. एंड सेकंड थिंग इज लाइक यू शुड प्रिपेयर फॉर टोफेल, IELTS और GRE, जिसके लिए बेसिक्स का सिलेबस है आपका एप्टीट्यूड या फिर इंग्लिश. इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए. एंड इंग्लिश वाई कि आपका एटलीस्ट यू शुड मैच विथ US, मैच विथ कनाडा. वहां पे आपको बोलनी आनी चाहिए. द मैसेज विच यू वांट टू गिव वो एटलीस्ट आपको क्लियर होना चाहिए. दैट्स द मेन कॉज. एंड मैथ्स का क्या होता है कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अप्रोच है क्या. अगर कोई सिचुएशंस आती है तो वो सिचुएशन आप हैंडल करते हो क्या. सो दैट इज व्हाट कंपनी और एनी एग्जाम वांट फ्रॉम दैट सिलेबस. सो आपको प्रिपेयर जो करना है दैट इज एप्टीट्यूड एज वेल एज इंग्लिश. एंड इसका डिजाइन सिलेबस जो है लाइक आप गूगल सर्च करने के बाद आपको डिटेल में मिल जाएगा सिलेबस. ठीक है. बट एज अ करियर अपॉर्चुनिटी यू कैन गो फॉर MS, दैट इज फ्रॉम TOEFL, IELTS और GRE. फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली जो लोग मैकेनिकल में है, सिविल में है, दे चूज IELTS. ठीक है. which is exam best for Germany and all those countries. Apart from this, GRE and TOEFL, these are the countries for US, Canada. Okay. So you should prepare for aptitude as well as soft skills. And इसमें हाँ और एक point मुझे इसमें mention करना है. See, there are several students जिनके score same आते हैं. तो like who will be given the priority? किसको priority मिलेगी MS करने के लिए, या फिर कोई यूनिवर्सिटी में एक ही requirement है and there are 2 students who are having 320 score, same score. तो you should work on your overall performance. मतलब क्या, तो वो और एक बात वो उसमें क्या देखते हैं, तो like how much paper you have published, या फिर आपका सोशल नेटवर्किंग में, या फिर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, आपका पार्टिसिपेशन क्या है. जैसे पेपर पब्लिश करना हो, how much you are active in research, how much you are active in your projects, ये चीज उसमें देखी जाती है. एंड स्पेशली US UK तो डेफिनेटली देखते ही है. तो ये जो आपके इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आई थिंक दैट प्लेज मेजर रोल, एज वेल एज आप जो पेपर पब्लिश करते हो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. Yeah. There is one more question, but I can give that answer. It is Yes. for, I think it is for teachers. What are the various ways to overcome the impact of COVID-19 for the student whose results are affected, especially final year students? So don't worry, students. Already we told that the university and the college will take care about your results, but those who are having the backlogs, no, they're supposed to clear their backlogs in the month of October, November examination. So and those who are first semester's results are cleared, they will get the degree with good mark. So it is not yet decided the exams are going to be conducted by the university or not. It is in dilemma only. So very soon, within 15 days, we'll come to know. So it's my request to all final year students, they start their preparation. Though exam is not there or not, it's not a matter. You start preparing, might be exam will be there. Okay. Right now we cannot say directly exam is there or not. Okay, but don't worry. If you are getting very less marks, if exam is not there, if they are making the aggregate marks, though if you are getting less marks, we have a chance after in the month of October and November, we are going to take exam. In that you can score your marks and you can proceed further in your future. Thank you.
and there is hope I gave the answer of that question. There's a last question I take. We are running short of time. Which certification are useful for computer students and from which site? Which certifications? Which Hello. certification are useful for the computer students and from which site? Acha. So, जैसे I had told you that you should focus on latest emerging technologies. ठीक है? So there are a lot of institutes in Pune, Mumbai. There are different institutes, and I can't tell you any particular site of this website or this site. Yet you should go for that or that. But what I will suggest that like you should focus on artificial intelligence, blockchain, all those latest emerging technologies. जैसे data science हो, digital marketing हो, ethical hacking हो, blockchain technology, cryptocurrency, and certificate. I can't tell you the exact कि आप इसी से refer करो. उसके लिए I will give you a solution. आप क्या करो? Any institute where you visit, ask the students about the feedback and who is the faculty member. अगर वो वहाँ का feedback अच्छा है and like उसके results अच्छे आ रहे, तो then like you can choose any certification from any institute or any academy. Or yes. Abhishek, let me add something on it. Yes, sir. There are some sites which is recognized by in the IT sectors also. The Coursera certification and the Udemy certification and NPTEL certifications are the most valued certification, and it will be and there are n number of commercial certifications also. The Cisco, you can go for Cisco certificate, Microsoft certification, Java certifications. There are a number of certifications are available. Whichever the student having the interest, they can go, they can get the knowledge and get the certification, which is very useful for your future career. Hope I answer the question. Okay, so I thanks Mr. Abhishek Vakodkar for giving his valuable time. He spent 1.5 hours with us, and he put forward its thought process on today's webinar impact before during the COVID-19 and what are the different opportunities after the COVID-19. Hope my all students get benefited out of this. This is my Pride alumni who started his own firm. Right now he is a freelancer. He is doing well. That's why we are proud, Abhishek. You are doing well. Hope after COVID-19 you will meet us and we'll have another session, live session with our students. Definitely. Thank you, Abhishek. Let me give 2-3 minutes to you to share about your college experiences with my students and the participants. Yeah. Achha. So like thanks, first of all, thanks for this opportunity. And so can I talk in Marathi? Hello. You can. Yes. No problem. Yeah, you can. Actually म्हणजे माझ्यासाठी ही एक खूप मोठी अचीवमेंट आहे. Like I had been chosen as a resource person to talk in front of you. आणि मला असं वाटतं मी बऱ्याच टीचर लोकांना जरा खूप जास्त त्रास दिलेला आहे. कधी सबमिशन वेळेवर नाही, त्याच्यानंतर प्रत्येक सेमिस्टरला बॅकलॉग्स वगैरे. सो पण ही जी मुवमेंट होती माझ्यासाठी एकदम बेस्ट मुवमेंट होती की आपण कोणाच्या समोर तरी बोलतोय आणि हे जे टीचर्स लोक आहेत म्हणजे ज्या प्रत्येक गोष्टी ज्यांनी बोललेल्या असतात त्यांनी रागवलेलं असतं. दॅट्स व्हॉट आय थिंक इज लाईक आपल्याला प्रत्येक गोष्ट म्हणजे इव्हन मी तर असं बोलेल की टीचरनी एखादा वाईट शब्द जरी तुम्हाला बोलला तरी तो आपल्या कामासाठी असतो असं मला पर्सनली वाटतं आणि हे माझं पर्सनल ओपिनियन आहे. आणि वन मोर थिंग व्हॉट आय विल ऍड इन दॅट की टीचर्स लाईक आधी जसं बोलायचे की लाईक आपल्या जी डेव्हलपमेंट आहे एखाद्या स्टुडंटची डेव्हलपमेंट जी आहे ती ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट जी होती ती एक जनरली 3 पॅरामीटर्सनी होती आणि हे ऍक्च्युली एपीजे अब्दुल कलामांनी पण बोललेलं आहे
की आपले आई वडील, सेकंड म्हणजे आपले एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपले टीचर्स येतात, तिसरी म्हणजे आपली सोसायटी. तर मला असं मी पर्सनली याच्यामध्ये ऍड करेल की आत्ताच्या कंडिशनमध्ये, आत्ताच्या एरामध्ये आपल्या आईवडिलांपेक्षा जास्त जर कधी कोणी आपल्या ग्रोथ, एका स्टुडंटच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटमध्ये कोणी सपोर्ट करत असेल, म्हणजे आईवडिलांपेक्षा जास्त सुद्धा, तर ते आपले टीचर्स असतात असं मला पर्सनली वाटतं. आणि याच्या व्यतिरिक्त अजून दॅट्स इट सर. मी डेफिनेटली कॉलेजला एक व्हिजिट करेल आणि झालंच प्रोग्राम Yes, लाईक. yes, yes. Abhishek. आणि सर लाईक नक्कीच आम्ही तुला कॉलेजला बोलूत आणि नक्कीच आमच्या मुलाबरोबर तू बाकीच्या गोष्टी शेअर करशील. अँड तुझा जो हातखंडा आहे about the what do you call soft skills and the aptitude freelancer sessions we are conducted throughout the Pune University that we observed, and you are getting very good appreciations from the all colleges. So it is a proud moment for all of us that our student is doing well in the market. So, and best of luck for your future. Yes, So sir. I am requesting all participants, please fill the feedback link. Yes, sir. After filling the feedback link, you will get the certificate. Today we'll be issuing the 100 certificate, and tomorrow also we are issuing the 100 certificate. So those who are not getting today, they're supposed to be filled it by tomorrow. We'll put it this link on Telegram group. But those who are attended, we'll cross check and we'll issue the certificate to those participants only. अच्छा. And sir, like one more thing I want to add. Please send me the feedback as well. आणि जे पण मुलं feedback देतील, please give the genuine feedback, because genuine feedback helps me to grow as well as stand strong in the market. So जो पण असं All the students and participants, I will share the all recorded these sessions on the Telegram group and as well as on YouTube also. Thank you, sir. And our next session under the alumni webinar series on 9th June 2020 on Tuesday, which is related with the project development and technology strategies in technology. So likewise, the very good topic is chosen by our alumni, Mr. Sirish Bhosle. He is our ME alumni, having its own startup in Magapatta. So I'll request all the students please join again and register for that webinar too. We'll get internship programs through this our third webinar. Thank you. Thanks a lot for attending today's session, and thank you, Abhishek, for giving your valuable time. Thank you, sir. Yeah. I conclude that today's session is over.